Welcome, students. In today's lecture, we are going to continue the explanation of the short story, The Gift of the Magi. So, we know that story is about a poor couple, Jim and Della. They both want to purchase a valuable gift for each other on the occasion of Christmas, and Della only had $1.87, and the money was not enough to buy a beautiful present for Jim. Then author tells the reader that the couple had two possessions. The one was Jim's gold watch and the other was Della's beautiful hair. Author tells us that Della was really concerned about money and she was standing by the window. And then she suddenly gets an idea to get money and she starts to examine her long, beautiful brown hair. So, now let us continue the story. And then she did it up again, nervously and quickly. Now she did it up again. That means उसने बाल वापस बांध लिए. Nervously and quickly, बहुत ही nervously और बहुत जल्दबाजी में. Once she faltered for a minute and stood still while a tear or two splashed on the worn red carpet. Once she faltered, falter means hesitated, yani हिचकिचाना. For a minute, she hesitated for a minute and stood still while a tear or two splashed on the worn red carpet. And she was standing while she started crying. A tear or two, एक या दो आंसू जो थे वो splashed means छलक गए. Okay, on the worn red carpet. Worn means that is damaged. Okay, old and damaged red carpet that was there in her flat. Okay, so कुछ देर के लिए डेला हिचकिचाती है for a minute and stood still. वो बिल्कुल स्थिर खड़ी हो जाती है and while a tear or two splashed on the worn red carpet. जबकि एक या दो आंसू जो हैं वो उसके टपक जाते हैं. कहाँ पर? उस पुरानी रेड कारपेट के ऊपर. On went her old brown jacket. On went her old brown hat. Now she wore her old brown jacket and she also wore her old brown hat. उसने अपनी brown jacket और brown hat को पहना. With a whirl of skirts and with the brilliant sparkle still in her eyes, she cluttered out of the door and down the stairs to the street. With the whirl meaning घूमना यानी चक्कर. With a whirl of skirts यानी कि घूमते हुए and with the brilliant sparkle still in her eyes और उसकी आंखों में अभी भी चमक थी. She cluttered out of the door. Cluttered out, that means she went out in a messy way. यानी बहुत ही बेतरतीब ढंग से वो बाहर निकल गई. And down the stairs to the street. और सीढ़ियों से उतरकर स्ट्रीट की तरफ चली. Where she stopped, the sign read, Madam Sofroni, here goods of all kinds. जहाँ वो रुकती है वहाँ एक साइन है, Madam Saffroni, here goods of all kinds. One flight up Della ran and collected herself, panting. Della ran towards the shop. Della उस शॉप की तरफ जाती है और खुद को संभालते हुए. कलेक्टेड हर सेल्फ, दैट मीन्स खुद को संभालते हुए. पैंटिंग यानी हाफते हुए, क्योंकि वो दौड़ कर गई है. मैडम लार्ज टू वाइट चिली हार्डली लुक्ड द सॉफ्रोनी. जो ऑनर थी शॉप की, मैडम सॉफ्रोनी, बहुत ही लार्ज थी. टू वाइट, कुछ ज़्यादा ही सफ़ेद थी. चिली यानी कि इमोशनलेस या बहुत ही ठंडा, जिसका दिखने में वो बहुत भावहीन जिसे कहते हैं. हार्डली लुक्ड द सॉफ्रोनी, और बहुत
मुश्किल से ही वो सॉफ्रोनी लग रही थी, यानी कि सॉफ्रोनी से यहाँ मीनिंग है कि वो शायद खुद को फॉरेनर बताना चाह रही थी, जो ऑनर थी। दैट इज़ वाई उसने अपनी शॉप पर लिखा था मैम सॉफ्रोनी, बट एक्चुअली शी वॉज नॉट। ओके, मैडम लार्ज टू वाइट चिली हार्डली लुक द सॉफ्रोनी। जो वहाँ की ऑनर थी शॉप की, वो कुछ ज़्यादा ही वाइट थी, चिली थी, ब्लाश थी, और वो बिल्कुल भी सॉफ्रोनी नहीं लग रही थी। विल यू बाय माई हेयर आस्ट डेला। डेला ने पूछा, क्या तुम मेरे बाल खरीदोगी? आई बाय हेयर सेड मैडम। मैडम ने कहा, आई बाय हेयर। टेक योर हैट ऑफ एंड लेट्स हैव अ साइट एट द लुक्स ऑफ इट। प्लीज टेक ऑफ योर हैट एंड लेट्स हैव अ साइट, लेट्स हैव अ लुक एट द लुक्स ऑफ इट। उसने कहा कि अपनी हैट उतारो और मैं तुम्हारे बाल देखना चाहूंगी। डाउन रिपल द ब्राउन कास्केट। डाउन रिपल, रिपल मीन्स वेव्ड। डेला के लहराते हुए बाल, जो कि कैसे थे, ब्राउन कास्केट की तरह थे, उसने वो खोल दिए। $20 said मैडम, लिफ्टिंग द मास विद द प्रैक्टिस्ड हैंड। मैडम ने कहा $20। लिफ्टिंग द मास, उसको उठाते हुए, मास यानी उसका भार, उसको विद अ प्रैक्टिस्ड हैंड, क्योंकि उसके अनुभवी हाथ थे, राइट। गिव इट टू मी क्विक सैड डेला। डेला ने कहा, मुझे तुरंत दे दीजिए। ओह, द नेक्स्ट 2 hours ट्रिप्ड बाय ऑन रोजी विंग्स। अगले 2 घंटे जो थे, ट्रिप्ड बाय दैट मीन्स पास्ट वेरी क्विकली ऑन रोजी विंग्स, जैसे कहते हैं कि समय पंख लगाकर उड़ गया। Forget the hashed metaphor. Now, author is saying, please forget the hashed metaphor. Hashed means that is used very commonly, commonplace metaphor. And what is metaphor? Metaphor is a comparison of two things without using as or like. As और like को यूज किए बिना जब आप दो किन्हीं चीजों में कंपैरिजन करते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटाफर। यहाँ ऑथर कह रहे हैं, प्लीज फॉरगेट द हैश्ड मेटाफर। कौन से मेटाफर की बात कर रहे हैं? जो ऑथर ने यूज़ किया है, 2 hour ट्रिप्ड बाय ऑन रोजी विंग्स, कि समय जैसे पंख लगा कर उड़ गया। समय के पंख नहीं होते हैं, पर उसको पक्षी से तुलना की गई है, दैट इज मेटाफर, राइट। फॉरगेट द हैश्ड मेटाफर। और ऑथर कह रहे हैं कि इस कॉमन प्लेस मेटाफर को भूल जाइए और हम अपनी कहानी पर आते हैं। शी वॉज रैंसैकिंग द स्टोर्स फॉर जिम्स प्रेजेंट। रैंसैकिंग दैट मीन्स खंगाल देना, यानी कि पूरी तरह से ढूंढ लेना, जांच पड़ताल कर लेना। She was ransacking the stores. Stores means shops. Okay. So Della was searching the shops for Jim's present because now she has $20, जो कि उसको मैडम सॉफ्रोनी ने दिए हैं हेयर के बदले में। She found it at last. Now Della found the shop. It surely had been made for Jim and no one else. The इट श्योरली हैड, ये जो डेला ने अब जिम के लिए जो गिफ्ट ढूंढा है, वो कहती है कि वो सिर्फ जिम के लिए ही बना था, एंड नो वन एल्स, और किसी और के लिए नहीं। देयर वॉज नो अदर लाइक इट इन एनी ऑफ द स्टोर्स। उस गिफ्ट के जैसा किसी दूसरी शॉप में कोई भी गिफ्ट नहीं था। एंड शी हैड टर्न ऑल ऑफ देम इनसाइड आउट, और उसने वो सारी ही शॉप्स को पूरी तरह से देख लिया था। इट वॉज अ प्लैटिनम फोब चेन। फोब चेन क्या होता है? वॉच के साथ जो चेन लगी होती है, जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फोब चेन। सो it was a platinum fob chain, simple and chaste in design. So the thing that Della liked was a platinum fob chain that she wanted to gift to her husband. अब उसको जो प्रेजेंट पसंद आया है वो है प्लैटिनम फोब चेन। प्लैटिनम एक धातु होता है जो कि बहुत कीमती होता है। इट वॉज सिंपल एंड चेस्ट। जो चैन थी, वो फोब चेन जो थी, वो बहुत ही चेन प्योर थी, ओके, और बहुत ही सिंपल थी डिज़ाइन में।
प्रॉपरली प्रोक्लेमिंग इट्स वैल्यू। प्रोक्लेमिंग यानी कि पूरी तरह से बता रही थी कि उसकी जो क्वालिटीज़ थी वो चैन की, उस गिफ्ट की वो खुद ही वो बता रही थी, क्योंकि उसकी जो मटेरियल था वो बहुत ही वैल्यूएबल था। बाय सब्सटेंस अलोन, सब्सटेंस यानी जिस चीज़ से वो बनी हुई थी, दैट मीन्स प्लैटिनम से बनी हुई थी, राइट। जिस मटेरियल से वो बनी हुई थी वो खुद ही उस फोर्ब चेन की वैल्यू को बता रहा था। एंड नॉट बाय मेरिट्रिशियस ऑर्नामेंटेशन। मेरिट्रिशियस मीन्स समथिंग apparently अट्रैक्टिव, जो दिखने में अच्छा लगे बट हैविंग नो रियल वैल्यू, पर उसमें असल में कोई वैल्यू ना हो, दैट इज कॉल्ड मेरिट्रिशियस। ऑर्नामेंटेशन होता है किसी चीज़ को सजाना या उसको अलंकृत करना, डेकोर करना, ओके, डेकोरेशन। सो ये जो चेन थी ये सिर्फ बाहरी दिखावे की नहीं थी, उसकी वैल्यू थी, उसका जो सब्सटेंस था, उसका जो मटेरियल था, और मटेरियल क्या था, प्लैटिनम, वो बहुत ही वैल्यूएबल था, और यही वजह थी उसकी कीमत इतनी ज़्यादा थी। एज ऑल गुड थिंग्स शुड डू, जैसा कि हर एक अच्छी चीज़ में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यानी कि मटेरियल अच्छा होना चाहिए, और जो अपेरेंट चीज़ें होती हैं, यानी कि दिखने में जो अच्छा लग रहा होता है वो हमेशा अच्छा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ओके। जो मटेरियल होता है, बेस मटेरियल, वही वैल्यू रखता है। इट वॉज इवन वर्दी ऑफ द वॉच। द वॉच क्यों लिखा है, क्योंकि वो बहुत वैल्यूएबल वॉच थी, जो जिम की वॉच थी, द गोल्ड वॉच, ओके। सो इट वॉज इवन वर्दी ऑफ द गोल्ड वॉच, और जो ये चैन, फोर्ब चैन देख रही है डेला, वो उस वॉच के काबिल भी है। As soon as she saw it, she knew that it must be Jim's. जैसे ही उसने उस फॉब चेन को देखा, डेला को लगा कि ये तो जिम की ही होनी चाहिए। It was like him. ये फॉब चेन भी जिम की तरह ही थी। Quietness, एकदम क्वाइट, एंड वैल्यूएबल टू, राइट। जिम में भी दोनों क्वालिटीज थी, वो शांत था पर वैल्यूएबल था। द डिस्क्रिप्शन अप्लाई टू बोथ, ये जो डिस्क्रिप्शन है वो दोनों पर लागू होता था, फोब चैन पर भी और जिम पर भी। $21 दे टुक फॉर हर, फ्रॉम हर फॉर इट। द फोब चैन वॉज फॉर $21, $21 की वो फोब चैन डेला ने खरीदी, बिकॉज डेला ऑलरेडी हैड $1.87, और उसके बाद उसे $20 जो थे वो अपने बालों के बदले में मिले थे, राइट। सो $21 उसने उस फॉब चेन के पे किए। एंड शी हरिड होम, और वो बहुत तुरंत घर की तरफ दौड़ी विद द 78 सेंट्स को लिए हुए, ओके। विद दैट चेन ऑन हिज वॉच, जिम माइट बी प्रॉपरली एंशियस अबाउट द टाइम इन एनी कंपनी। अब जब उसके पास वो चेन होगी अपनी वॉच के साथ, तो शायद जिम जो है वो किसी भी कंपनी में हो, किसी के भी साथ हो, कंपनी यानी जब किसी के साथ होगा तो वो टाइम देखने के लिए बिल्कुल आतुर रहेगा। एंशियस यानी बहुत ही आतुर रहेगा। ग्रैंड एज द वॉच वॉज, जितनी ज़्यादा सुंदर वो वॉच थी, ही समटाइम्स लुक्ड एट इट, लेकिन कभी कभी जिम उसकी तरफ ऑन द स्लाई, ऑन द अकाउंट ऑफ द ओल्ड लेदर स्ट्रैप। वो जिम जो था, हालांकि उसकी घड़ी बहुत वैल्यूएबल थी, ऑन द स्लाई मीन्स सीक्रेटली देखता था, ऑन द स्लाई यानी कि, पर वो समय देखते वक्त, टाइम देखते वक्त जिम जो था अपनी घड़ी को सीक्रेटली देखता था। वाई, बिकॉज द वॉच हैड एन ओल्ड लेदर स्ट्रैप। जो वॉच थी उस पर एक पुराना लेदर का स्ट्रैप यानी फीता लगा हुआ था, ओके, दैट ही यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ चेन, जो कि जिम उस चेन की जगह पर यूज कर रहा था। When Della reached home, her intoxication gave way a little to prudence and reason. Now, when Della returned home, जब Della घर वापस आती है, her intoxication gave way. Intoxication means नशा, उसका जो नशा था, जो उसने जल्दबाजी में ये जो काम किया था, वो खत्म हो गया। A little to prudence and
रीज़न. वॉट इज़ प्रूडेंस? प्रूडेंस इज़ विजडम, यानी कि उसकी बुद्धि और रीज़न, तर्क जो था वो वापस आ गया था. शी गॉट आउट हर कर्लिंग आयरन्स. अब उसने अपनी कर्लिंग आयरन बाहर निकाली. कर्लिंग आयरन बालों को कर्ल करने के लिए यानी घुंघराला बनाने के लिए यूज़ होती है. एंड लाइटेड द गैस. एंड शी लाइटेड द गैस एंड वेंट टू वर्क रिपेयरिंग द रेवेजेस. अब वो क्या कर रही थी? जो नुकसान उसने किया था उसको वापस रिपेयर कर रही थी. दैट मीन्स अब उसने जो बाल कटवा दिए थे उसको सेट कर रही थी. रिपेयरिंग द रेवेजेस. व्हाट इज रेवेजेस? डैमेज. जो उसने बर्बाद कर दिया था उसको थोड़ा बहुत रिपेयर कर रही थी. कैसे कर रही थी? शी वॉज कर्लिंग हर हेयर. वो उसको कर्ल कर रही थी. मेड बाय जेनरसिटी एडेड टू लव. और ये बर्बादी उसने किस वजह से की थी? क्योंकि कुछ ज़्यादा ही जनरसिटी यानी उदारता दिखाना. किसमें? लव में. ओके. इसलिए डेला ने लव में जनरसिटी दिखाते हुए अपने ब्यूटीफुल बाल जो थे वो बेच दिए थे. ओके. विच इज़ ऑलवेज अ ट्रिमेंडस टास्क डियर फ्रेंड्स, अ मैमथ टास्क. जो कि हमेशा ही एक बहुत बड़ा काम होता है. ट्रिमेंडस मीन्स बहुत बड़ा. ट्रिमेंडस यानी बहुत बड़ा, टास्क यानी काम. डियर फ्रेंड्स, अ मैमथ टास्क. मैमथ मीन्स ग्रेट, बहुत बड़ा. Within 40 minutes, her head was covered with tiny close-lying curls. 40 मिनट्स के अंदर डेला का जो हेड था वो किससे कवर हो गया था? टाइनी यानी छोटे छोटे, क्लोज लाइन यानी कि पास पास में, कर्ल्स घुंघराले बालों से. दैट मेड हर लुक वंडरफुली लाइक अ ट्रूएंट स्कूल बॉय. जिसकी वजह से डेला कैसी लग रही थी? एक ट्रूएंट स्कूल बॉय की तरह लग रही थी. व्हाट इज ट्रूएंट? ट्रूएंट इज जो बच्चे होते हैं जो रेगुलरली स्कूल अटेंड नहीं करते हैं और बंक मारते हैं, दे आर कॉल्ड ट्रूएंट. ओके. जो कि स्कूल से एब्सेंट रहते हैं. शी लुक्ड एट हर रिफ्लेक्शन इन द मिरर लॉन्ग, केयरफुली एंड क्रिटिकली. अब उसने अपने रिफ्लेक्शन को, अपने प्रतिबिंब को मिरर में देखना शुरू किया और वो बहुत देर तक, फॉर लॉन्ग, ओके, बहुत देर तक सावधानी से अपना प्रतिबिंब देखती रही. एंड क्रिटिकली, और एग्जामिन कर रही थी कि क्रिटिकली यानी अच्छा है या बुरा है, वो ये एग्जामिन कर रही थी. इफ़ जिम डजेंट किल मी. अगर जिम मुझे मार ही ना डाले. किस लिए? क्योंकि डेला ने अपने ब्यूटीफुल हेयर बेच दिए थे. शी सेड टू हर सेल्फ. उसने अपने आप से कहा, बिफोर ही टेक्स अ सेकेंड लुक एट मी ही विल से. कि मुझे देखते ही जिम क्या कहेगा? आई लुक लाइक अ कॉनी आइलैंड कॉरस गर्ल. मैं कॉनी आइलैंड पे गाने वाली, कॉरस गर्ल यानी गाने वाली लड़कियां जो झुंड में गाती हैं, कि मैं उसकी जैसा दिख रही हूँ. बट वॉट कुड आई डू? पर मैं क्या कर सकती थी? ओ वॉट कुड आई डू विद $1.87. मैं सिर्फ $1 और 87 में कर ही क्या सकती थी? डेला ने अपने आप से ही सवाल पूछा. So that is all for today's lecture. We will continue the story in our next video. Thank you.